آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آپ اس گفتگو کو پورا سنیں۔ اس آڈیو میں پہلے مجھے ایک مفتی صاحب نے کال کیا جو کہ اہل سنت و جماعت سے ہیں، اور اجگر حرامی دیوبندر نے ان سے میرے خلاف کچھ بغاوت کی، کچھ جھوٹ بولا، اور پتہ نہیں کیا ان کو جو ہے میرے تعلق سے بولا ہوگا، اللہ بہتر جانے۔ بہرحال پھر حضرت نے میری کوئی کلپ سنی، پھر حضرت نے مجھے کال کیا، بات کی میں نے کافی ٹائم، اس میں بات رہی۔ اس گفتگو میں حضرت کی بھی آپ بات سنیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اجگر دیوبندر کا کال آیا ہے۔ حضرت نے ہی کال کیا تھا پر اس نے اٹھایا نہیں اس وقت۔ پھر اس اجگر دیوبندر نے کسی کو لائن پر لے کر کال کیا، کیونکہ یہ اکیلا کال نہیں کرتا ہے، بہت بڑا شیطان ہے، ساتھ میں کسی کو رکھتا ہے، ساتھ میں کسی کو لاتا ہے۔ کتنی زبردست اس کی شکست ہوئی ہے، کس طرح پاگل کتے کی طرح بھونک رہا ہے، کس طرح اس پر پاگل پن کے دورے پڑنے لگے ہیں، آپ اس گفتگو میں ملاحظہ فرمائیے۔ اس پوری گفتگو کو آپ سنیں گے، بہت کچھ سمجھ آئے گا، الحمدللہ بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ خاکسار حامد رضا رضوی بول رہا ہوں میں۔ اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور مزاج علی بخیر ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، ماشاء اللہ، سرکار غوث اعظم کرم فرمائے۔ اور سب بتائیے، کہاں پہ ہو ابھی؟ جی گھر پہ ہوں حضرت۔ گھر آپ کے کہاں پہ ہی؟ جی ڈسٹرکٹ رامپور، یو پی، اتر پردیش، بریلی شریف کے پاس۔ اچھا، بریلی شریف کے پاس، ماشاء اللہ، جی سلامت رکھے، آمین۔ جی میں دیکھا ہوں ویڈیو وغیرہ بھی، میں ایسے تو بھی 2-3 روز پہلے ہی میں آپ کا نام سنا ہوں، پہلے نام بھی نہیں سنا تھا میں۔ اچھا حضرت۔ 2-3 روز پہلے بات ہوئی تھی اجگر دیوبندی سے، اچھا جی، ہاں، اسی کے زبان سے اور اسی کے کچھ چیلا چپاٹی لوگ جو ہے گد الذی، انہی سے نام میں سنا ہوں کہ نور حسن ڈرائیور ہے وہ، ان کے بارے میں اس طرح میں نے سنا، تب میں نے بھی یوٹیوب پہ دیکھا تو میں سوچا کہ گفتگو کرتا ہوں کچھ اس کا، میں گروپ وغیرہ بھی اس کو شامل کیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ 15 شعبان المعظم کو، یعنی 14ویں شعبان المعظم کو، شب برات کی شب، اسی رات اس کے کچھ چیلا چپاٹی تھے، تو اس نے میں نے ویسے بہت سارے گروپ کے بانی گروپ بھی ہوں، مسائل الشریعہ، اور بہت سارے فتوا بھی نیٹ پر مطلوب ہے میرے، ماشاء اللہ، الحمدللہ جی، فتوا نویسی اور بہت سارے چیز ہے، اللہ کا کرم، سرکار غوث اعظم کا فیضان ہے۔ تو اسی حوالے سے حضور تاج الشریعہ کا مرید بھی ہوں، 2014 میں ان کے گھر پر میں بیٹھ کر کے مرید ہوا ہوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے حضرت۔ آمین آمین، اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی۔ تو اسی حوالے سے میں نے 14ویں شب کو، 15 تاریخ کے شب کو بات ہوئی، تو ایک دیوبندی نے بہت زیادہ چیلنج کر رہا تھا، وہ یعنی وہ لوگ پکڑتے کسی ایسے لوگوں کو جو جانکار نہیں ہے، کوئی اس بارے میں جانتے نہیں ہے، سمجھے، تو اس کو پکڑ کر کے وہ ماں کانا و ماں یکون کے بارے میں اس کو الو پڑھا رہا ہے، اس طرح پڑھا کر کے اس کو کہتا ہے کہ رضا خانے کے اندر کسی کے اندر ہمت ہے تو وہ پھر مجھے کال پہ بات کرے۔ جب میں اسے بات کیا ہوں کال، تو مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا پہلی بات، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں درجہ دوم کے طالب علم میں ہوں، آپ مجھ سے کیوں بات کر رہے، کہتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ تم جب درجہ دوم کے طالب علم ہو تو پھر اتنے بڑے دعویٰ کرنے کی یہ کیا وجہ تھی یہاں پہ کہ کسی کو بھی کہہ دو کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی عالم سے یہ کہہ دو۔ بے شک، وہی بات ہوئی، جب میں اس سے پرسنل پہ بات کیا، اس کے حوالہ، اس کے اعتراض کے میں نے جب جواب دیا، تو وہ مجھے ایک گروپ میں شامل کیا جس کا نام ضرب دیوبندہ رکھا ہے۔ اچھا، سمجھے، تو گروپ میں شامل کرنے کے بعد شرائط متعین ہوا، اور اعلیٰ حضرت نے خود کو کتا کہا ہے، اس نے ایک فتویٰ پیش کیا، سمجھے۔ تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب اس ٹاپک پہ تم بات کرنا چاہتے ہو تو اسی موضوع پہ بات ہوگی، گفتگو ہوگی رات 10 بجے، کہ اعلیٰ حضرت نے خود کو کتا کہا ہے، کس بنا پہ کہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، کہ سگے مدینہ کس وجہ سے کہا ہے۔ اب تمہارے اکابر جو ہے وہ خود کو کتا، بلی، گدھا، خنزیر، چوہا جو کہا ہے، وہ تمہاری کتابوں سے میں ثابت کروں گا۔ جی رات میں یہ بات متعین ہوا، جی سب کہا ہے، خنزیر، گدھا، کتا، بلی، سب کہا ہے، بدتر بولے، ہاں اس سے بھی بدتر کہا گیا ہے۔ جب یہ ہے، جب سور سے بدتر ہے تم لوگ، تو پھر اس سے کیا آگے کوئی بات ہی نہیں ہے، تمہاری ایمان کی یہ ہے ہی۔ جب رات میں ہوئی تو جس سے گفتگو ہونا تھا وہ حاضر نہیں ہوا، پہلی بات۔ اجگر دیوبندی بیچ میں ٹانگ اڑا رہا ہوا، ہمیں گروپ سے نکال دیا جب دیکھا تو، سمجھے۔ وہ گروپ سے نکالنے کے بعد وہ فون کر رہا بار بار کہ
फोन पे बात करो, फोन पे ये करता ही है कि फोन पे गुफ्तगू करने से हमारे अकाबिर जो है फोन पे गुफ्तगू करने से मना किए, समझे। अब आप लोग हैं जिस तरह लोग होंगे उसी तरह उससे गुफ्तगू की जाती है, समझे, उसी के अंदाज में। हाँ, तो मैं देखा हूँ मुफ्ती करीम अंती भी वो उन लोग का नहीं, अच्छा ये आपका फील्ड नहीं है। जी आप जी मेरे सर के ताज हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप आलिम हैं, मुफ्ती हैं, तो ये आपका फील्ड नहीं है हुजूर। क्योंकि ये शैतान जो है ना, कुत्ते की तरह यहाँ से बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, बड़बड़ की दुकान लगा देते हैं, भौंकते हैं। ये अच्छा, अजगर देवबंदी तो मेरा नाम सुनते ही पागल हो जाता है, मेरी बात को सुनता ही नहीं। हाँ, जब मैं बोलना चालू करूंगा तो सिर्फ बड़बड़ाएगा, मैं उसकी बात को सुन लूंगा। भाई, जब मैं सुन रहा हूँ तो तेरा भी हक बनता है कि तू भी अगले की बात को सुन। बिल्कुल। और रात में रोज फोन करता है वो। अब मैं कहा कि मैं कई दिन से आपको ट्राई कर रहा था आपके नंबर पे, उसने कॉल ही नहीं लग रहा था उस पर भी, तो मैंने कही वो फोन करेगा रात में, वो कहेगा कि गुफ्तगू करनी है, बात करनी है फोन पे। मैसेज पे उससे बात हुई है अभी, तो मैं ग्रुप में शामिल किया हूँ, रद्दे देवबंदियत ग्रुप है हमारा, तो उसमें शामिल किया हूँ। उसके तमाम हवाला जात, उनके तमाम शराइत के मुतायन बात करने की हमने दावा किया। हमारे उलमा किराम ने कहा कि हम आए दलील के साथ बात करते। हमने कहा कि उसने कहा कि सुन्नी लोग जो होते, बरेलवी जो होते हैं, वो खाली गाली जो ना दे वो बरेलवी हो ही नहीं सकता। मैंने कहा कि ठीक है, जब हम गाली देंगे हम ये साबित कराएंगे, तुम वक्त मुतय्यन करो, तुम शराइत मुतय्यन करो, उस शराइत पे बात होगी, फिर हम ये साबित कराएंगे कि हम गाली देते हैं या फिर हम दलाइल पेश करते हैं। जी जी। तो वो भाग जाता है, वो इस बात पे बात ही नहीं करता है, वो अब इधर उधर कर रहा है। ग्रुप में उसको शामिल किया हूँ मैं, एक ग्रुप में, और उसके चेले चपाटी जो लोग हैं, जितने भी उसके चेले चपाटी लोग हैं, सब इसी के रहमो करम पे वो तुले हुए हैं, समझे। हुजूर असल में बात क्या है कि ये एक नंबर का जाहिल है, एक नंबर का जाहिल। मुफ्ती उमैर कासमी के जब छक्के छूट गए तो ये साला शैतान ऊपर आया, इसलिए कि ये बोलने वाला ज्यादा है, ये कुत्ते की तरह भौंकता ज्यादा है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इतना दबदबा है इस नाचीज का। आप जैसे उलमा की जो पैर की जो चप्पल है, जो जूती है, का कर्म है ये। बेशक बेशक हजरत, देखिए वो तो आला मकाम वाले हैं, उनकी आला शान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो इस दौर के मेरे आलिम हैं, उलमाए हक, उलमाए सुन्नत, जिनकी पहचान आज मसलक के आला हजरत से होती है, जी जी बिल्कुल, उनके गुलामों के गुलाम जो होते हैं ना जी, तो उनके जो कदम की जो जूती है, जो चप्पल है, उसके नीचे जो धूल लगी रहती है, उसके कदमों की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह इनके दारुल देवबंद के जो शैतान है बड़े बड़े, जी जी बिल्कुल, वो भी फोन काट देते हैं और जवाब देने से काफिर रहते हैं। और मैंने कई सारी क्लिप अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे डाली है। जी जी। यहाँ तक कि वो सवाल का जवाब ही सही नहीं देते। वो अब देखिए ऐसा करता है वो लोग, जिस किताब को अभी आज वो एक मौजू उठाया, वो एक किताब उठाया कि मवाइज़े नईमिया में मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी ने जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज को शैतान निकाल सकता है, ये वो पेश किया, समझे। मवाइज़े नईमिया की वो इबारत पेश किया। तो मैंने जब उसका रद्द किया, इस हवाले से मैंने पेश किया, उसके रद्द में जो जवाब पेश किया, अब उस पर ये कह रहा है, उस पर वो टांग अड़ा रहा है, इधर से उधर कर रहा है उसको, अब ये कर रहा है, तो अपना वीडियो निकाल के वो डालता है। हाँ, आज यही कहने लगा, मैंने कहा चल हवाला भेज, नहीं भेजा। अच्छा, मेरी बात को सुन ही नहीं रहा। अच्छा, मुझे इतना गुस्सा आ गया उस पर कि मैंने उसको ऑल फॉल भी बक दिया, यहाँ तक कि मैंने उसको गाली भी बकी आज। अच्छा, वो बात करता नहीं, मैं पैसे से ड्राइवर काम आदमी हूँ, मगर वो मेरी बात को नहीं सुन रहा था, मुझे इसलिए गुस्सा आया। जब मैं सकून से अगले की बात सुन रहा हूँ हजरत, तो उसको भी चाहिए कि मेरी बात को सुने। अभी वो मैं आपका एक वीडियो निकाला था यूट्यूब से, उसके गुफ्तगू हुई थी, तो वो जो है आपका गुफ्तगू निकाल करके वो यूट्यूब में डाला, मैं देखा हूँ। वो अक्सर ये लोग ये करते क्या, क्लिप में, यानी वो अब वो एक मुझे ये कहा कि आप करके डालता है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल पर सारी गुफ्तगू फुल मिलेंगी, जितनी भी गुफ्तगू होगी वो पूरी की पूरी मिलेगी, चाहे किसी की भी हो। हाँ, कल एक जन से बात हुई थी परसों रोज, ये मोहसिन बोल करके है, तो उसी से बात हुई, तकरीबन 1.5 घंटा बात हुई थी। वो बार बार पे हर लफ्ज पे तौबा कर रहा था, उसे मैंने तौबा कराया, एक एक लफ्ज पे उसकी पकड़ हो रही थी, वो जिस तरह से बात कर रहा था। वो जाहिल लोग होते ये लोग। अब वो अजगर देवबंदी इन लोग करता क्या है कि कहता है कि 3 मिनट गुफ्तगू हमारी तरफ से होगी, 3 मिनट, अब ये काट काट करके ये है यूट्यूब पे डालता है। अब आपके हवाले से बहुत सारे उसने वीडियो डाला, मैं देखा हूँ, अभी वो ग्रुप में मैंने डाला था, तो मैंने मेरी क्लिप पेश किया कि तुम्हारी देखो, तुम्हारी ये क्लिप है, तुमने जो
बड़बड़ा रहा है। तो तुम्हारी ये क्लिप है, ये तुम्हारी से बातें हुई है, देखिए नूर हसन रिजवी की, तुम इस पे देखो, तुम जो कह रहे हो क्या कह रहे हो, तुम्हारी क्या बात है, तुम्हारी क्या है। अब वो फोन करता है बार बार, वो कहता है कि आओ सुन्नियत जो भी है दावत, वो हमेशा फोन करता है, वो मुझे कॉल हुजूर करता है, कॉल करके वो कहता है कि आप कॉल पे गुफ्तगू करिए। 6-7 साल हो गए, मेरी एक क्लिप इसी के ग्रुप में पड़ी हुई थी, इसी को मैंने चैलेंज किया था, मैं आपको भी भेज दूंगा, इसी के नंबर पे मैंने टैग किया था। अच्छा, मैंने कहा कि दुनिया देवबंदियत में किसी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बात कर ले और मेरे सवालों के जवाब दे दे अच्छा, और अपने आप को सही साबित कर दे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो पता नहीं किसने जो है उस ऑडियो को वीडियो में तब्दील कर दिया, स्क्रीन शॉट रिकॉर्डर लेके, मतलब उसको टैप कर लिया, तो वो मेरे पास किसी ने भेजा। जब भेज दिया मैंने कहा कोई बात नहीं है यार, मैंने तो जो बोला अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आज भी उस पर अटल हूँ। दुनिया में किसी देवबंदी औरत ने ऐसा बच्चा ही पैदा नहीं किया है जो मेरे सामने आके अपने किसी भी अकाबिर शैतान को वो सही साबित कर दे या अपनी जमात को सही साबित कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दावा है, जो मैं कहता हूँ सच्चे दिल से और पुख्ता यकीन के साथ कहता हूँ, बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वादा है कि मैं अपने अकीदे को उसके मुंह से सही साबित करवाऊंगा, उसके मुंह से उगलवाऊंगा, उसको कबूलवाऊंगा इंशाअल्लाह, और उसी के अकीदे को उसी के मुंह से कुफ्र या शिर्क साबित करवाऊंगा, और उसके जो अकाबिर हैं उस तरह के अकीदे रखने वाले इंशाअल्लाह उसको भी वो अपने मुंह से काफिर या मुशरिक साबित करेगा। और यही मेरा काम है हजरत। मैं ये नहीं करता कि नहीं तूने ऐसा कह दिया तो क्यों कह दिया, इसकी दलील ये है, इसकी दलील ये है, इसकी दलील ना, मैं कहता ही नहीं कि इसकी दलील ये है ये ले, मैं तो कहता हूँ सिर्फ हुक्म लगा। आज भी मैंने इसको किया। अव्वल बात ये है कि तुम सिर्फ अपने आप को मुसलमान होना साबित कर दो बस, उसके बाद जितनी भी गुफ्तगू आगे गुफ्तगू खाली तुम खुद को मुसलमान साबित करो जी। बाकी तमाम बातें आगे बात तो वो सही है, मगर मैं तो इस तरह की बहसें नहीं करता। मैं तो सिर्फ यही करता हूँ कि इसने जैसे इल्म गैब का इनकार किया, या हुजूर के नूर होने का इनकार किया, या फिर हुजूर के इख्तियार का इनकार किया, या फिर गैरुल्लाह से मदद मांगने का इनकार किया, मतलब जिस भी टॉपिक पे आए और जो इनके इनकार है, बस इनसे हुक्म लगवाता हूँ और इनके घर का मसला इनको बता के और इनके मुंह का निकला हुआ फतवा इनके गले में डाल के और छोड़ देता हूँ, जाइए हो गया आपका काम। उसको ग्रुप में शामिल किया हूँ, एक तो तमाम दारो मदार उसी पर रहते, तो मैं आपको भी शामिल करूंगा उसमें इंशाल्लाह। अभी रद्द देवबंदियत ग्रुप है, तो आज रात 10 बजे उससे गुफ्तगू मुतय्यन हुआ था कि आप 10 बजे हाजिर होइए, तमाम शराइत मुतय्यन होगा और तमाम चीजें पर बात करके ग्रुप लॉक कर दिया जाएगा और आपसे जिस मौजू पे बात किया जाएगा पंजा आजमाया जाएगा। देखता हूँ कि दुनिया वहाबियत में कितनी हिम्मत है, कौन माँ की बच्चे ने इस तरह तुम्हें जन्म दिया कि मैसेज पे आए तुम गुफ्तगू करे और आजम से। उसे इसी बात पे बात हुई थी 10 बजे अभी रात को। अभी उसे कॉल करूंगा तो फिर देखिए क्या बोलूं, कॉल लगाऊं क्या उसे? अभी लगाइए लाइन पे मैं रहूंगा इंशाल्लाह, आप बात कीजिए। उसको देखिए अभी ये आपकी बात को सुनेगा नहीं, मुझे लगता है बड़बड़ाएगा, और मेरा नाम सुन के तो बड़बड़ाता ही है, क्योंकि फिर मैं बोलूंगा, आप बोलिएगा, देखिएगा। मैं बोलूंगा नहीं, आप सुनते, मैं सुनूंगा सिर्फ, आप बात कीजिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲକୁ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୟାକରି କିଛି समय लाइन में रहନ୍ତୁ। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲକୁ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୟାକରି କିଛି समय लाइन में रहନ୍ତୁ। आप जिस कॉल नहीं उठा रहे, उठाएगा नहीं, वो आपका कॉल नहीं उठाएगा। मैं जानता हूँ ना इस शैतान को, बहुत बड़ा हरामी है ये हजरत। मैंने तो सुबह यहाँ तक इसको बोला कि मैंने कहा तू कम से कम सैकड़ों लोगों का मिक्सचर है। मैंने इसको बोला तू बाजारू औरत का बच्चा है, तो उसकी गलत हरकतों का गलत नतीजा है। जब ये मेरी बात को नहीं सुन रहा, मेरा दिमाग खराब हो गया हजरत। अच्छा, अब ये लोग जो है ना, ये अपने बड़बड़ाने से, अब मैं इसको कॉल किया हूँ परसों इससे मैं बात करने के लिए, इसने कहा कि रात 10 बजे गुफ्तगू होगी और कॉल पे बात होगी। जब इससे कॉल पे बात हुई तो ये कॉल पे यानी करता ये लोग क्या है कि जैसे आपका कॉल आएगा या फिर आपको फौरन कॉल करेगा और ये कहेगा कि फला किताब है, ये किताब में ये इबारत है, पेश करेगा, समझे, घुमाने के लिए। जी 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 जी, हाँ, ये कमबख्तगिरी इस तरह करते हैं। इबारत भी वो किस तरह करता है, मुझे एक इबारत पेश किया
निज़ाम शरीयत का, और जिस निज़ाम शरीयत का जो मुसन्निफ है वो कह रहा है कि आला हजरत मुसन्निफ है, और असल में आला हजरत की किताब नहीं है, वो निज़ामुद्दीन किताब है, निज़ामुद्दीन मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन की किताब है वो लिखी हुई। तो वो कह रहा है कि आला हजरत ने तुम्हारी, मैंने कहा कि आला हजरत ने लिखा, तुम इबारत पहले पढ़ो फिर से क्या। फिर कहा कि हामिद रजा ने लिखा, फिर उसने कहा कि मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने लिखा। जब उसे घुमाया फिराया तो उसके बाद फिर वो इबारत पेश किया, तो इबारत पूरी गलत पढ़ा। मैंने कहा कि फिर से इबारत पढ़ो, शुरू से पढ़ो जहां से पढ़ना। जब वो इबारत पढ़ा तो उसकी पकड़ वहीं पे हो गई। ये लोग ये करता है, इबारत को भी काट करके किताब की ही पेश करता है ये लोग। कम से कम ये 20 दिन से या 15 दिन से इस मौजू को लेकर फिर रहा है चारों तरफ। मैंने कहा कि 2 सफ़े पीछे के, 2 सफ़े आगे के, और ये सफ़ा जो तू पढ़ रहा है भेज दे मेरे पास अगर तू हलाली है। आज तक भी नहीं भेजा हजरत। ये मेरे से गुफ्तगू हुई जब निज़ाम शरीयत का वो इबारत पढ़ रहा था। मैंने कहा कि जो इबारत आप पढ़ रहे हैं, अच्छा मेरे इस व्हाट्सएप पे भेजे, समझे। तो वो उसी दम बखला गया, और वो बाद में जब कॉल करता है तो वो शरायत मुतय्यन कर रहा है। कहा कि इस शरायत पे मुतय्यन होगा। कहा कि कौन सी शरायत है। कहा कि 3 मिनट आप बोलिएगा, 3 मिनट मेरे आलिम बोलेंगे। और उसके बाद वो क्या कहता है कि जब हम हवाला पेश करें तो हवाला का स्क्रीन मत मांगिएगा बीच में। मैंने कहा कि क्यों नहीं मांगेंगे स्क्रीन। तो कहा कि नहीं, स्क्रीन मांगना ये दुरुस्त नहीं रहेगा, ये कहता है। कैसे नहीं रहेगा? इसलिए दुरुस्त नहीं रहेगा कि झूठ पकड़ा जाएगा। जब पकड़ा जाएगा झूठ, उसके रद्द यहीं पे हो रहेगी। अब वाबियत वो पेश कर रहा है, वो कह रहा है कि अब देखिए, लेकिन इस कदर लोग ये बदबख्त लोग होते हैं। से बात करते हैं हजरत, अगर कोई मांग लेता है हवाला तो हम उसको दे देते हैं, ले पकड़। हाँ, हम सुन्नी हो भाई, हम तो हवाला दलाइल के साथ पेश करते। तुम जो हवाला मांगोगे हम वो हवाला पेश करेंगे, कुरान और हदीस के हवाला। अब वो मुझे कह रहा है कि दुनियाए सुन्नी जो लोग हैं, वो रजा खानी लोग जो हैं, वो बगैर गाली के बात ही नहीं करते हैं। अब मैंने कहा कि गाली, अच्छा कुरान में गाली नहीं क्या, कुरान में नहीं कहा, कुरान में जी जी जी, ये हमारे हमारे वलियों को गाली बके, हमारे रब को गाली बके, तो ये सब ठीक है। और हम जरा मैंने कहा कि अच्छा, हमने पेश किया कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जो नबी के दीन को, नबी के शरायत को मुतय्यन ना करे, अल्लाह के नबी के बातों को ना माने, वो हरामी है। मैंने कहा कि क्या हरामी से भी बढ़कर के कोई गाली है क्या? तुम पेश करो हरामी से भी बढ़कर कोई गाली। अगर तुम देवबंदी वहाबी अगर गुस्ताखे रसूल हो तो तुम पर ये फिट होगा ये गाली कि तुम हरामी हो। तो क्या कुरान ने तुम्हें गाली दिया है? कहा जाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ये तो क्या हरामी से बढ़कर कोई गाली? जब कुरान ने कहा तो क्या तुम्हारी किताबों में गाली नहीं लिखा है? जी हुजूर, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो आयत उतरी थी खालिद बिन वलीद शैतान के ताल्लुक से, हाँ, तो उस शैतान ने मेरे आका की शान में गलत वर्ड इस्तेमाल किया, गलत बात कही, मेरे आका को मजरूह कहा। बिल्कुल। तो उस शैतान के ऊपर, उस गुस्ताखे रसूल के ऊपर कुरान पाक की उस वक्त आयत जो है वो नाजिल हुई। और कुरान पाक को और दीन इस्लाम को मुकम्मल हुए 1400 बरस बीत चुके हैं। 1442-47 हिजरी को चल रही है। बिल्कुल 42। तो आज तो कोई नया कुरान नहीं उतरेगा ना, आज तो कोई नई आयत नहीं उतरेगी किसी भी हरामी के ताल्लुक से। ठीक है हजरत। तो इनके बड़े हरामी को उसके अपने मुंह से, उसकी अपनी जबान से, उसके अपने कलम से अल्लाह तबारक व तआला ने हरामी साबित कर दिया। इनका जो बाप थानवी है, बिल्कुल, वो अपनी किताब अशरफ उस-सवाने में लिखता है कि उसकी पैदाइश से पहले उसके जो भी भाई बहन होते थे वो मर जाते थे। और इसके पैदा होने से पहले पहले इसके बाप को एक ऐसी बीमारी हुई कि बड़े परेशान थे, खारिश की बीमारी हो गई थी। लोगों ने, डॉक्टरों ने, हकीमों ने, वैद्यों ने उसको एक दवा बताई और कहा कि एक दवा अस्थिर है मगर इससे ये नुकसान हो सकता है, यानी आप कातिल नस्ल हो सकते हैं। अच्छा। तो उसने कहा कि भले ही मैं कातिल नस्ल हो जाऊं, भले ही मैं नामर्द हो जाऊं, मैं आम भाषा में बोल रहा हूँ, कातिल नस्ल का उसमें अल्फाज है ताकि लोग समझ पाए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। उसने सोचा कि भले ही मैं नामर्द हो जाऊं, बच्चे पैदा ना हो, कोई बात नहीं है, मगर मैं अच्छा हो जाऊं। और उसने वो ये कहकर जो है दवा खा ली उस डॉक्टर हकीम के कहने से, और वो नामर्द हो गया। अब जब नामर्द हो गया तो ये थानवी कहां से टपका? और इसके पैदा होने से पहले पहले मुर्तजा मजजूब ने बताया, गैब की बात तो कोई नहीं जानता, मुस्तकबिल की बात तो कोई नहीं जानता ना अल्लाह के अलावा इनके नजदीक। तो फिर मुर्तजा मजजूब ने जो ये बताया
کہ ان کے 2 بچے ہوں گے, 2 بیٹے ہوں گے, اور دونوں جو ہے صاحب نصیب ہوں گے, اچھے نصیب والے ہوں گے, اور دونوں زندہ رہیں گے. تو اس کے نانا نے پھر یہ بات کیسے تسلیم کر لی, اور پھر اس نے کیسے تسلیم کر لی جو کہ معاذ اللہ حضور کے علم کو جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں سے تشبیہ دیتا ہے شیطان. یہ پیش کرتا ہے. اس حوالے سے میں نے اس کے گفتگو ہوئی تھی واٹس ایپ پہ, اس کے یہ تمام جو ہے یہ پیش کرتا ہے کہ ماں کانا وما یکون کا علم نہیں تھا حضور کو. تو یہ دلائل کے ساتھ ایک علم اس کا 8-10 دن کی بات ہے, ایک شیطان تھا یہاں کا سہارنپور دیوبند کا, مفتی فرحان قاسمی دیوبندی, مفتی فرحان صدیقی دیوبندی. اچھا. اس نے کہا کہ ہاں, پہلے تو اس نے ایک بار ان سب اور بات کی تھی 6-7 مہینے پہلے. تو اس نے کہا کہ میں علم غیب مانتا ہی نہیں حضور کے لیے, میں تو ذاتی علم غیب کا قائل ہوں, عطائی کا میں قائل ہی نہیں. اب اس نے بات کی, میں نے اس نے بھی اس کو پھانس دیا, اس کو بھی اس سے کافر کہلوایا. بہرحال اب جب اس نے بات کی تو اس نے اب پائن گھمایا اور کہا کہ میں عطائی کا قائل ہوں, میں عطائی کو مانتا ہوں, مگر اتنا ہی مانتا ہوں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے. تم جمی ماکانا وما یکون کا علم مانتے ہو؟ میں نے کہا جی بالکل مانتا ہوں کہ جو ہو چکا ہو, جو قیامت تک ہونے والا ہے. میں نے کہا جی میرا یہی عقیدہ ہے. تو بولے کیا یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو کا علم حضور کو ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ہے. اب آپ بھی بتا دیجئے ہے یا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا, اگر نہیں ہے تو پھر میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرا ایمان یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ساری کائنات کو کفے مثل کی طرح رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. جیسے کوئی انسان اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہو, ساری کائنات میرے آقا کے سامنے ایسا ہے جیسے کوئی ہتھیلی اپنی دیکھ رہا ہے کوئی بندہ, یا کوئی شخص جو ہے کسی تھالی میں فون کر رہا ہے, اصغر دے میں فون کر رہا ہے کم وقت. اچھا جی اٹھائیے, بات کوئی نہیں ہے, بعد میں بات کریں گے, لے لیجیے اس کو. The person you are speaking. ہلو, حامد رضا افضری صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جی میں بول رہا ہوں. خیریت؟ جی فون لگایا تھا آپ نے؟ ہاں جی میں فون لگایا تھا طبیعت وغیرہ پوچھنے آپ کے لیے. خیریت سے؟ اچھا طبیعت خود نہیں فون لگایا تھا آپ نے؟ ہاں رات 10 بجے موضوع متعین ہوا تھا کہ گفتگو ہوگی گروپ پہ, تو کہاں تشریف لے لایا. ہاں تو موضوع کیا ہوتا؟ آپ گروپ میں آئیں گے تب نا, اسی موضوع پہ بات ہوگی, گفتگو ہوگی. میری بات, میں نے ان کو چیک کر کے بولا کہ فون کروں. اب وہ فون تو لگے گا نہیں, پاکستان سے کال تو لگے گا نہیں جناب والے کے, جس گفتگو کرنی ہے. عامر محمود صاحب پاکستان کا نمبر ہے وہ؟ جی بالکل. برابر. اگر فونی پہ گفتگو کرنی ہے تو اس کی بھی دوسرا ذرائع موجود ہے, گوگل میٹ ہے یا پھر زوم ایپ ہے. ان تم بھی ذرائع میں تمام حوالہ جات کے ساتھ جس کتاب کا عبارت پیش کریں گے اسے فوراً گوگل میٹ میں دکھانا پڑے گا وہاں پہ. یہ بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. ہو بھی سکتا ہے. جی ہاں. اور بتائیے, یہ ترتیب نکالیں فون میں گفتگو ہو جائے گا. نکالوں میں انشاءاللہ ضرور. اچھا نور حسن بھائی سے بات ہوئی تھی آپ کی؟ نور حسن رضوی کا نام لے رہے تھے. ویڈیو بھیجے آج, ٹھیک ہے 8 بجے 8:30 بجے ویڈیو بھیجے. تو میں تو ان کا آڈیو بھی بھیجا تھا کہ آپ کو لتاڑ رہے تھے وہ گروپ میں, وہ اپنے کال ریکارڈنگ میں. آپ سن لیں, ویڈیو بھیجیے وہ سن لیں. ہاں میں سنا ہوں, میں بھی کچھ بھیجا ہوں ویڈیو اور آڈیو کی صورت میں نے اسے کر کے بھیجا ہوں. میں دیکھے نہیں, آپ سنے نہیں ویڈیو آڈیو؟ ہاں ویڈیو بھی میں نے کیا بولتے یوٹیوب کا میں نے لنک ارسال کیا تھا, اور اس کے علاوہ میں نے پھر اس آڈیو کو میں نے نور حسن رضوی کون سا موضوع تھا اس میں؟ اب جو بھی موضوع ہو آپ نے گفتگو کی ہے تو آپ سنیں ہوگا. آپ نے سنا ہوگا نا, خالی آپ نے یہ سنا ہے کا موضوع موضوع کیا تھا؟ موضوع اس گفتگو کا موضوع تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنے والا اس تعلق سے بات ہوئی تھی شاید. ہاں تو اس میں کیا ہوا تھا اس میں؟ اب آپ سن لیجیے گا تمام اچھی طرح سے, آپ کو یہ بات سنا ہوگا نا. کیا ہوا, انکار کرنے والا کیا ہے, کیا دیا اس نے دلائل کون سے دیا؟ اچھا آپ یہ بتائیے کہ جمیع ما کانا وما یکون کا انکار کرنے والا کیسا ہے آپ کے نزدیک؟ آپ اپنے عقائد پیش کریں. میرا عقیدہ
हाँ अपना अकीदा पेश करें। इसी पर बात करें आप, करेंगे आप? बात करें ना, मैं ये पूछ रहा हूँ, इस बात पे बताए। नहीं, पूछने का नहीं, मैं गुफ्तगू करता हूँ, पूछना सवाल फॉल नहीं। अच्छा, शराइत तय करता हूँ और गुफ्तगू शराइत, इसी वजह से तो मैंने पेश किया था ग्रुप में कि शराइत मुतय्यन करे और मौजू मुतय्यन करे, जब इस बात पे हो जाए वक्त मुतय्यन करे, और उसके बाद फिर पंजा की जाएगी तमाम हवाला जात के साथ। सिर्फ 2 लोग गुफ्तगू करेंगे, जितने मेंबर्स है सब वो खामोशी से सिर्फ समाअत करेंगे, वो सिर्फ सुनेंगे, समझे, देखेंगे कि वो क्या है। आपको पता है मैं फोन में रहता हूँ, फोन में। अच्छा, फोन पे तो क्यों, आप व्हाट्सएप पे और फिर सामने व्हाट्सएप में बहुत किया, बहुत बड़ा व्हाट्सएप में। किसको लताड़े व्हाट्सएप पे बताइए तो जरा मुझे। हम लोग जब 2 लोग शामिल हुए थे और हमसे गुफ्तगू करने का मौजू मुतय्यन किया हुआ था, वक्त मुतय्यन हुआ था कि आला हजरत ने खुद को कुत्ता कहा, इस मौजू पे आप लोगों ने गुफ्तगू की थी। एक किताब है आपकी, एक किताब है आफ्ताब हिदायत और रिज़्ज़ो बिदात। अच्छा, एक किताब है, मोहम्मद करमुद्दीन जबीर की किताब है। वो लिखे हैं कि मसला भी मुसल्लम है कि मायकून खासा ज़ात बारी ताला है, मगर शिया कहते हैं कि इल्म की ये सब मालूमात हासिल है। सुने इल्म गैब के ताल्लुक से सुने माँ काना व माँ यकून में आपके घर की किताबों से मैंने साबित किया था ग्रुप में, मैं इस हवाले से पूरी टॉपिक मैंने पेश किया था। आप में यही तकलीफ है, आपके अंदर यही तकलीफ, आप सुनते यही तकलीफ नहीं, यही तकलीफ नहीं। मैंने आपसे जो माँ काना व माँ यकून का जो आपने इनकार किया था, माँ काना व माँ यकून जो हो चुका है और जो हो रहा है, इसका इल्म हुजूर को है या नहीं है, समझे। तो इस ताल्लुक से मैंने आपकी घर की किताबों का हवाला आपके सामने पेश किया था। आपका अकीदा क्या है? क्या मेरा अकीदा तो यही है कि हुजूर को माँ काना व यकून का इल्म है, हर एक की ज़रात का इल्म है हुजूर को, जो हो चुका है उसका भी इल्म था, जो है जो हो रहा है उसका भी इल्म है। जी, आप आलिम हैं? क्यों खादिम उलमा हूँ मैं, खादिम हूँ, खादिम। अच्छा, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने आराज़ को मानते हैं? किसको? आपको पता है ये क्या बोलते हैं उसका, ये एक किताब आपकी है, कौन सी किताब? लिखा है कि जो किताब को नाम बताए किताब का। हाँ, किताब का नाम बताऊं? जो पढ़ते हैं, पहले मेरी बात सुन लीजिए, तमाम मेरी बात सुन लीजिए पहले, कि जिस किताब का आप इबारत पढ़ते हैं, जो किताब आप पेश करते हैं, आपने एक इनकार किया था कि मवाइज़े नईमिया में मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने हुजूर को इस बात कहा कि हुजूर का पता मुझे होता है, कम चिल्लाते हो। हाँ क्यों नहीं, मैं ये साबित करा रहे कि आपकी घर की किताबों से साबित कराया हूँ कि हुजूर नहीं है, वो अहमद यार खान नई किताब है। अहमद यार खान किताब है अस्सवारिमुल, अरे सुनो यार, अस्सवारिमुल हिंदिया है, तुम्हारा मुनाजिर इस्लाम मौलाना हस्मत अली खान लिखता है, रही ये बात कि जो आला हजरत का अकीदा ना हो उसको वो काफिर जानते हैं, यानी जो अहमद का अकीदा ना हो वो क्या है, काफिर है। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, सुनो, अरे सुनो, तुम कोई भी किताब की ये मौजूद पेश करते हो, सुनो बीच मेरी बात सुन, पहले सुन, इधर सुन। तुम लोग जो हो ये कोई भी किताब का जब हवाला पेश करते हो, इबारत पढ़ते हो, तो ये पूरी इबारत क्यों नहीं पढ़ते हो, वो आधा क्यों समझते हो उसकी? हाँ, यही सबसे बड़ी खामी है कि तुम्हारे अकाबिर भी, अब तुम लोग भी जो समझे हो, ये अपनी किताबों से जब साबित करते हैं जब ऐसे, तो आधी किताब आधी इबारत पढ़ करके वो जो है उसका मफहूम समझ लेते हैं, समझे, ये पूरी नहीं समझते, ये समझे, इतने बड़े गधुल लजी है ये पूरी नहीं समझते, ये पूरे मौजू पे जब ये हो तो वो इबारत पूरी नहीं पढ़ते हैं, वो एक इबारत पढ़ करके उसके तमाम जो है मौजूआत, तमाम चीजें वो तय कर लेते हैं खुद से। यही सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये है। अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। आपने माँ काना माँ यकून के मुताबिक क्या कहा अभी? माँ काना व माँ यकून, जमीए माँ काना व माँ यकून का हुजूर को इल्म था, है, समझे, हर एक चीज का, हर एक जर्रात का इल्म है हुजूर को। ये अकाइद में से, हेलो, हाँ ये अकाइद में से है ना? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा अकीदा है कि हुजूर को हर एक चीज का इल्म था। बहुत बोला है। अरे यार सुनो, अब आपकी किताब, आपके आला हज़रत की किताब है फतवा रज़विया, हाँ, जिल्द नंबर 27 है, ठीक है, और सफर नंबर 144, ठीक है, हाँ, वो लिखते हैं कि हाँ का तमाम
खसारिश व कबाई से। अगर इसे ये खास पहले सही से पढ़ना सीख जाओ, सही से पढ़ो, सही से। मेरे पास सुनो, ये खास सिफत हजरत आलिमुल गैब व शहादत की है, जल्ल अला तारा वमा याज़िबु अन रब्बिका मिन मिस्काल ज़र्रा। अरे उर्दू अरबी के बात पढ़ रहे हो तुम, आलिम हो क्या? पहले ये बताओ, आलिम हो तुम? मुझे बोलने दो यार। वमा याज़िबु अन रब्बिका मिन मिस्काल ज़र्रतिन फिल अर्दि वला फिस समा, नहीं छुपती तेरे रब से जर्रा बराबर की जमीन में और न आसमान में। आगे लिखते हैं आपके आला हजरत, और उसका गैर खुदा के लिए साबित करना कसान कुफ्र, इज्जत अल्लाह के लिए है। इस आदमी इम्कान को मुसलमान गौर करे कि कैसा कुफ्र इस्काफ और कितने तरीक उस नसूस कुरानिया का खिलाफ है। क्या गैर खुदा के लिए साबित करना कसान कुफ्र, ठीक है। और तुमने कहा कि माकून जो है ये अली जर्रा से नबी वसल्लम को है, रहा है कि ऐसा अकीदा जो कुफ्र है। यही तुम्हारे की कमी है कि तुम जिस इबारत को पढ़ते हो उसके वो घोटाला सबसे पहले करते हो, या फिर उसकी तुम मानो मफहूम मतालिक तुमने समझते नहीं हो, समझे, दलाइल की रोशनी में। अब हुजूर अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ये मुख्तस है, समझ रहे हो। इल्म गैब जो है अल्लाह तबारक व तआला के लिए मुख्तस है, ये किसी दूसरे के लिए नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की अता से हुजूर हर एक ज़र्रात का इल्म रखते हैं। जमीन और आसमान में जो हो रहा है, अब जो हो चुका है, जो होगा, हर एक ज़र्रात का इल्म हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को है। ये तुम्हारी किताबों से भी साबित करूंगा, मैं अपनी किताबों से भी साबित करूंगा। इसने इबारत पढ़ी है आलिमुल गैब, खुद ही पढ़ी इसने इबारत इसने खुद ही पढ़ी है आलिमुल गैब। आला हजरत ने खुद ही बता दिया। इसको जरा बोलो, इसने इबारत पढ़ी, समझा नहीं है। एक मिनट सुन है, और उसका गैर खुदा के लिए साबित करना कसान कुफ्र, यही तो पूरी बात कैसा कुफ्र। तो बताएं कि ये जो तुम्हारे आरब ने कुफ्र लिखा है ऐसा अकीदा गैर खुदा के लिए साबित करने के मुतालिक, तो तुम ज्यादा होशियार और तुम दिन के ज्यादा माहिर हो कि तुम्हारा आला माहिर था। हो गया, हम बोले? हाँ बोलो। हाँ ठीक है, नूर हसन भाई कुछ बोल रहे, बोलिए नूर हसन रजवी भाई। इसने खुद ही पढ़ा है, हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला ने आलिमुल गैब का अल्फाज वहाँ इस्तेमाल किया, और इसने खुद पढ़ा है अपने मुंह से। इससे जरा दोबारा पढ़वाओ वो जुमला। चलो वो इबारत पढ़ो फिर से। हाँ चलो फिर, नहीं छुपती तेरे रब से जर्रा पढ़ो, वो इबारत वो आती है पूरी पढ़ो, पूरी जो पढ़ा था। तर्जुमा किया है यहाँ पे। सुनो वो नहीं वो इबारत पढ़ो, अरबी इबारत जो तुमने पहले पूरी पढ़ी, पूरी इबारत पढ़ो, वो जो लिखा हुआ है। रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास। नहीं छुपती तेरे रब से जर्रा बराबर की जमीन में और ना आसमान में। और आगे लिखता है, और उसका गैर खुदा के लिए साबित करना कतई कुफ्र। अरे अभी आलिमुल गैब का लफ्ज इस्तेमाल किया था ना। अभी देखो बोलने नहीं दे रहा है, एक मिनट बोलने नहीं दे रहा है, इबारत यहाँ से बोलने नहीं दे रहा है, तुम इबारत यहाँ से बोलने नहीं दे रहा है। देखा ये तुमने अरबी इबारत बोली, मुझे मैं अभी पढ़ रहा हूँ। और वो आलिमुल गैब का जो तुमने पढ़ा तो वो पढ़ो फिर से। चलो वो उर्दू था, अरबी इबारत नहीं था। हाँ पढ़ो, वहाँ से पढ़ो जहाँ से शुरू तुमने जो किया था। आलिमुल गैब जहाँ पढ़ रहे थे वो जरा पढ़ो। ये खास सिफत हजरत आलिमुल गैब व शाम की है, जल्ल अला ताला वमा याज़िबु अन रब्बिका मिन मिस्काल ज़र्रतिन फिल अर्दि। कौन सा आलिमुल गैब की खास सिफत में से ये है कि जर्रा बराबर का इल्म होना और गैर के लिए साबित करना कतई कुफ्र है। तो बगैर अल्लाह की अता के, बगैर अल्लाह की अता के काफिर साबित हुआ। अरे पागल, बगैर अल्लाह की अता के। उसमें देखो ये भी लिखा है कि बगैर अल्लाह की अता से किसी को इस चीज का इल्म नहीं है। अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता जब किए तो हुजूर को इस चीज का, हर एक चीज का इल्म है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्मुल अस्मार पढ़ो, सामीन देखे अपने तरफ से कर रहा है। अहमद दर्जनी बात मैं बताऊंगा, टेंशन मत ले, मैं बताऊंगा। मारने जा रहे हैं, बताए मार रहा है। चल अब सुन ले तू, चलो ये बात सुन, पढ़ो, यहाँ कहा लिखा है कि अल्लाह की अता से जो है, एक मिनट है, और यहाँ पे कुफ्र का फतवा एक मिनट मेरे आला हजरत ने तो खुद ही कुरान पाक की आयत में बयान फरमाया। अरे सुनना, ये बताइए कुरान पाक किस पर नाजिल हुआ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर। सच बोल रहा है?
तुम्हारे बाप पर लाजिम तो नहीं होता तुम्हारा। जो मैंने पूछा उसका जवाब दे, जो मैंने पूछा के अंदर है उससे पागलपन के दौरे पड़ने लगे अभी से। जो मैंने पूछा उसका जवाब दे, जो मैंने, फिर वही बात, जो मैंने पूछा उसका जवाब दे। जवाब दे दिया काफी टाइम से बोल रहा है ना, हुजूर पर नाजिल हुआ ना, मोहम्मद कुरान कह रहा है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, इस कुरान पाक में जमीन और आसमान के अंदर जो भी चीज है, पहाड़ों में जो भी चीज है, समंदर के नीचे जो भी चीज है, समंदर में जो भी चीज है, यानी कायनात में जो भी जर्रा है, जो भी शय है, उस चीज का इल्म इस कुरान पाक में है या नहीं है, इसका जवाब दे। बिल्कुल है। बिल्कुल है। हाँ, होश में बोल रहा है कि नशे में बोल रहा है? नशे में तू है। अच्छा है, तेरा ईमान है? नशे में नूर हसन है, नूर हसन। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, है ना? अच्छा है ना, कुरान पाक में हर शय का इल्म। तेरा क्या अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अकीदा है, तुझसे उगलवाना चाहता हूँ, टेंशन क्यों लेता है? वो आयत पर तू। इंशाल्लाह मैं आयत पढ़ूंगा, मगर तू पहले मुझे बता कि कुरान पाक में हर चीज का रोशन बयान है कि नहीं है? इंशाल्लाह नहीं, कि अल्लाह चाह रहा है कि तुम अपने हर दावों पर दलील दो। तो मैंने जो पूछा है पहले उसका आप जवाब दे दीजिए जनाब। इंशाल्लाह बोले हो ना? इंशाल्लाह अभी पढ़ूंगा, पहले उधर से आप मुझे जवाब दे दीजिए। जवाब नहीं मिला है मुझे, हाँ? उधर से मुझे जवाब चाहिए। तू मुझे, अरे मैं तुझसे कुछ पूछना ही नहीं चाहता। मैं देख रहे हैं हजरत, ये है इनकी हरकतें यार, मजा नहीं आता इन लोगों से बात करते। इंशाल्लाह मैं आयत पढ़ूंगा। पहले मुझे तू ये बता कि इस कुरान पाक में हर शय का इल्म है या नहीं है, और इस कुरान पाक में हर चीज का रोशन बयान है या नहीं है, ये बता पहले। हर चीज का रोशन, मैं मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने जितने अंबिया भेजे हैं, तमाम अंबिया का नाम नहीं है उसके अंदर। फिर वही बात मैं बोला मैंने, कुरान के अंदर, अरे कुरान के अंदर नहीं है? कुरान के अंदर ये एक मिनट, अच्छा एक मिनट, तो मेरे नबी को भी उस चीज का इल्म है या नहीं? एक मिनट, अब रुक जा, यही रुक जा, एक मिनट, एक मिनट। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? कुरान पाक में 25 नबियों का नाम आया, मगर कम व बेश 1,24,000 पैगंबर जो यहाँ आए, जो हमारा अकीदा है, ये किसने बताया? बोल। है नाम नहीं है, नाम बोल रहा हूँ। फिर वही बात, नाम फिर वही बात। अच्छा, मेरे नबी उनका नाम जानते हैं या नहीं जानते? अंबिया के नाम नहीं है, मेरे नबी गिरामी अस्मा मुबारक नहीं है। मेरे नबी उनका, तू नाम बता मुझे कुरान से, तू कह रहा है कि मेरे नबी उनका नाम जानते हैं या नहीं जानते हैं? यहाँ मेरे नबी के इल्म की बात चल रही है। नबी के इल्म से कोई इनकार करता है रे जाहिल भामर? जो मैंने पूछा फिर उसी का जवाब दे, जो मैंने पूछा उसी का जवाब दे। मेरे नबी जानते हैं कि नहीं जानते हैं उनके नाम? कितने नबी हैं? गुमराह करने के लोग देख यार, पागल क्यों हो रहा है? अभी से पागल होने लगा। मुफ्ती साहब से तो बड़ी अच्छी बात कर रहा था ना तू, फिर वही बात। मुफ्ती साहब से बड़ी अच्छी बात कर रहा था, मेरा नाम सुनते ही तुझसे पागलपन के दौरे पड़े लगे। नाम बताए हो, नाम बता। कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला माशा अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैब क्या पढ़ा? किसने पढ़ा है ये? मैं पढ़ रहा हूँ। सुनिए, अगर वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैरि वमा मस्सनी यस्सू, ये कुरान मुकद्दस की आयत है। सुन, हाँ, इसमें क्या फरमाता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में फरमा रहा है कि तुम फरमाओ, मैं अपनी जान और नुकसान का खुद मालिक नहीं, मगर जो खुद मुख्तार है, खुद मुख्तार, झूठ बोल। तेरा आला है तो तर्जुमा कर। सुन, मैं खुद मुख्तार करते हैं, तुम्हारा बोल नहीं हूँ। आला तेरे आला के खिलाफ तर्जुमा मत कर तू। आला तो तेरा आला तर्जुमा किया, तुम फरमाओ मैं अपनी जान के भले बुरे का खुद मुख्तार नहीं। तो मुख्तार कुल कहते हो ना,
कहते हैं अरे कमरा यानी खुद बखुद नहीं, अल्लाह की अता से इनकार नहीं है ना। एक मिनट हजरत, ये एक मिनट, चुप मत, चुप ना। ये जो आयत पढ़ी है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के ज़ाते इल्म के ताल्लुक से ये आयत है, और मैं जो तुझे दूसरी आयत पढ़ के बता रहा हूँ ये मेरे नबी के इल्म के ताल्लुक से आयत है। सुना दूसरी आयत इसने क्या है? कहाँ से बोल रहा है तू कि ये जो आयत है ये अल्लाह के इल्म के मुतालिक है? जी हाँ, जी ये आयत ही बता रही है, ये आयत ही बता रही है कि मेरा रब फरमा रहा है महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं अपनी जान के नफा नुकसान का खुद मुख्तार नहीं, मगर जो अल्लाह ताला चाहे। क्या? मगर जो अल्लाह ताला चाहे, यानी अल्लाह जो चाहता है, अल्लाह की अता से इनकार नहीं है। यहाँ पर जाती तो ताल्लुक से है, ये आयत जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के जाती इल्म और जाती इख्तियार के ताल्लुक से है। अब मैं तुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि चुप ना बे कि किसने किया? मुसलमानों ने किया, अल्लाह के वलियों ने किया है, शैतान कहीं का। अब तो दूसरी आयत सुन, अब दूसरी आयत सुना पहले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल। माकानो की बात चल रही थी, चुप ना, माकानो मायकून की बात चल रही थी। तेरा आला हज़रत ने हामिद रज़ा अज़हरी और नूर हसन खन्ना के ड्राइवर को कुफ्र के घाट उतार दिया। कहाँ भाग गया? अच्छा चल, माकाना व मायकून था। खुदा के लिए साबित करना अच्छा कुफ्र है। अच्छा प्यार से बात करना जैसे मैं करता हूँ, ऐसे तो बात नहीं होगी ना, मैं ऐसे बात करता हूँ। सुन, जो अपने आला को लात जैसे मैं बात करता हूँ वैसे बात करना। माँ काना उमा यकून पर कर, माँ काना उमा यकून पर कर, चल माँ काना उमा यकून पर कर। माँ काना उमा यकून का इल्म है या नहीं? अच्छा जो मैं और तू जो बात कर रहे हैं इसका इल्म हुजूर को है या नहीं? बोल। क्या? मैं और तू जो बात कर रहे हैं अभी इस वक्त, इस गुफ्तगू का इल्म हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है या नहीं? बोल। हासिल है। तू क्या बोल रहा है? हासिल है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जर्रे का तेरा तो फिर जर्रे में ये भी आ गया ना, जो हो चुका और जो कयामत तक होगा उस सब का इल्म मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता कर दिया। मेरे नबी जानते हैं ये इसका इल्म। अब आका अलैहिस्सलाम को इसका इल्म था कि नहीं कि ये कौम को इस्लाम से पूछता अंबिया है, उनका नाम क्या था? अरे तो नाम क्या था ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं मालूम था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों नहीं बताया? ये कुरान तो अल्लाह की रज़ा से अरे पागल कहीं, ये कुरान किसकी तरफ से नाजिल हुआ? एक मिनट, ये तेरा एतराज तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ जा रहा है। ये तेरा एतराज तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की तरफ जा रहा है, क्योंकि कुरान पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वही लेके आए हैं, तो ये तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहे कि अल्लाह तबारक व तआला को नाम नहीं मालूम थे, भूल गया था अल्लाह ताला माज़अल्लाह। कहना शिकायत कर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से शिकायत कर। पागल कहीं के, मेरे सामने सही से बात कर। देख जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ उस तरह बात कर। इस चीज का इल्म है हुजूर को या नहीं जो मैं और तू बात कर रहे हैं? इसका जवाब दे पहले, फिर वही बात। बस खाली तू ये बोल कि हुजूर को इस चीज का इल्म है या नहीं है, खाना में जवाब दे, बस बात खत्म हो गई। फिर वही बात। अरे अब साले उधर भागने का, कमीन कहीं के, कभी यहाँ पे भागता है कभी वहां पे भागता है, कमीन कहीं के। साले कोई एक ठिकाना है नहीं के तेरा? अरे तेरा कोई एक ठिकाना है नहीं कि? तेरा कोई एक ठिकाना है कि नहीं है? तो माँ काना वमा यकून में ये भी शामिल है जो तू और मैं बात कर रहे हैं। कमीन कहीं के, पागल है क्या? चमार से ज्यादा बदतर, अरे चमार से ज्यादा अरे चमार से ज्यादा जलील, चमार से ज्यादा जलील कौम। तू कहाँ भाग रहा है? तुझे भागने थोड़ी दूंगा मैं ऐसे। मेरी बात सुन। अबे सुअर से बदतर, ओ थानवी की नाजायज औलाद, सुअर से बदतर हरामी कहीं के, जो मैं तुझसे बात कर रहा हूँ इसी का जवाब दे कि ये इल्म है कि नहीं मेरे नबी को कि मैं और तू जो कर रहे हैं। ये वही बात है, तो तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? मैं तो तुझसे सीधा सीधा पूछ रहा हूँ ना, या तो मना कर दे या कह दे हाँ मालूम है, या तो मना कर दे या कह दे मालूम।
या तो मना कर दे, या तो मना कर दे या कह दे कि पेश करता हूँ, सुनो। या माँ का नाम कौन की बात कर रही है? अरे माँ का नाम माँ यकून में ये शामिल है। अच्छा ये बता कि ये माँ का नाम, काफिर है, ऐसे जवाब दे। माँ का नाम माँ यकून में ये शामिल है या नहीं है ये बता। अजगर देवबंदर तू हरामी कहीं के, माँ काना व माँ यकून में ये शामिल है या नहीं है ये बता। फिर वही बात, मुसलमानों देख रहे हैं, इसको ये जवाब देना है कि मैं और ये जो बात कर रहे हैं ये माँ खाना और माँ यकून में शामिल है या नहीं है। काफिर है मुसलमान। अरे खराब करने का, मुसलमानों देख रहे हैं, मैं और ये जो बात कर रहे हैं ये भी माँ खाना और माँ यकून में शामिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी को माँ खाना और माँ यकून का इल्म हासिल है, और मेरे नबी को ये इल्म है कि हम दोनों जो बात कर रहे हैं ये इल्म मेरे नबी को है। मैं अपने नबी की शान व अज़मत बयान कर रहा हूँ, ये मेरे नबी के कमाल को घटा रहा है। मेरे नबी काफिर और मुसलमानों के बाप के नाम से जानते हैं कि कौन काफिर है और कौन मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक। अरे मुसलमानों देख रहे हैं, अपने मुझे किसी बात नहीं मान रहा है ना, इसका जवाब दे। मुसलमानों देख रहे हैं, कि मैं नबी की शान बता रहा हूँ। मेरा नाम सुन के ये पागल हो जाता है। सुबह भी ये पागल हो गया था, अब मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ कि मेरे नबी को ये इल्म हासिल है या नहीं। मैं और तू बात कर रहे हैं, मगर ये इसका जवाब नहीं देगा क्योंकि इसको मालूम है कि मुफ्ती फरहान सिद्दीकी देव के बंदर को मैं लताड़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसको उसके मुंह से काफिर साबित करवा चुका हूँ, जिसने फजाइल बबाल लिखा था, जिसने फजाइल बबाल लिखा था, समझा। ओ शैतान के पुत्र, पहले इसी पर बात कर। ये जो तू और मैं बात कर रहे हैं ये माँ खाना उमा यकून में शामिल है या नहीं, पहले इस बात का जवाब दे। कौन सा मैं और तू जो ये बात कर रहे हैं ये माँ खाना उमा यकून में शामिल है या नहीं है। फिर गाली मत बक, वरना तो मुझे जानता है मैं ड्राइवर हूँ, एक आम आदमी हूँ, समझा। अबे नज्द की नाजायज औलाद, वहशिया औरत की गंदी हरकतों के गलत नतीजे। काफिर कह रहा है, वो गाली नहीं है। मैं खबीस के लिए गाली हो गया। हराम के पिल्ले, तू बस इतना बता कि मैं और तू जो ये बात कर रहे हैं। काफिर कह रहा है, वो गाली है। देख रहे हैं मुफ्ती साहब, मैं क्या बात करूं, इससे जवाब दे रहा है ये, इसके मुंह में बरेली सिर का बात पड़ गया जाके। थानवी हरामी ने बिल्कुल सही बोला था कि देवबंदी अवाम की अकल ऐसी है जैसे गधे का अजूर तनासुल बढ़े तो बढ़ता चला जाए और घटे तो घटता चला जाए, पता ही ना लगे। फतवा अन-नवाजिल है मेरे पास, फतवा अन-नवाजिल है, ठीक है। इधर पढ़ रहा हूँ। पहले मुझे इस बात का जवाब दे कि मैं और तू जो बात कर रहे हैं ये माँ काना व माँ यकून में शामिल है या नहीं है। माँ काना माँ यकून की तारीफ कर तू। फिर वही बात, जो हो चुका और जो कयामत तक होगा, होने वाला जो है, उस सब का इल्म हमारे नबी को हासिल है अल्लाह ताला की तरफ से। मेरे सामने हो रहा है तो गुफ्तगू हो रही है, माँ काना मकुन कहाँ से है। फिर वही बात देख रहे हैं हजरत मुफ्ती साहब, कहाँ से हुआ है मरदूद। मुफ्ती साहब देख रहे हैं, क्या है, मुफ्ती साहब देख रहे हैं। ये पता है एक हदीस समाप्त करो, एक हदीस मरदूद जो कान से सुन रहा है गए भाई हो, जो आँख से देख रहा है गए भाई हो, हम सुन रहे कान से और बोल रहा है गैब है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी सल्लल्लाहु सुन रहा है, बोल रहा है गैब है। आंखों से देखने को देख कहते हैं, देख रहे हैं हजरात, देख रहे हैं। अब देखिए ये मेरी बात का जवाब नहीं देगा, मगर मैं इसके घर का हवाला दे देता हूँ, ठीक है हजरत। कराना चाहता है, मैं इसके घर का हवाला मैं खुद दे देता हूँ, ये बोलेगा नहीं, ये जवाब ही नहीं देगा। यही कमाल है, दूसरे की बातें नहीं सुन रहा। देखो मुझे मालूम है ना, मेरे सामने आके सारे देव के बंदरों को पागल करके दौरे पड़ जाते हैं। गए किसी कहते हैं, बोल तारीफ। हम बात मेरी सुन रहे, तू मेरी सुन। चल तू कर, पहले तू कर गैब की तारीफ, फिर मैं करता हूँ। पहले तू कर फिर मैं करता हूँ। हाँ तारीफ कर, पहले तू कर फिर मैं करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि जो अल्लाह के नबी वजह तख्लीक़े कायनात का गुस्ताख होगा वो हरामी है। हरामी से बढ़कर कोई जाहिल की तारीफ है। तुम्हारी बात में पेश करता हूं, तारीफ है मिशकात शरीफ की हदीस बता रहा हूं, सुन मिशकात के तमाम उलूम का खजाना आपके भी है, तो एक अजहरी है, एक ड्राइवर है, दोनों भाग रहे हैं।
अब नजदीक, अब हम रहे कि भाग तू रहा है, गैब की तारीफ, गैब की मैं तारीफ करूंगा, पहले तू कर, की तारीफ, गैब की तारीफ पहले तू कर, फिर बाद में मैं करूंगा। ये वो तूने कहा माकानो मायकुन, अरे अल्हम्दुलिल्लाह, तू गैब की तारीफ गैब बोल रहा है तू, तो तू करना, पहले तू कर, फिर मैं कर। बोल रहा है मौजूद, गाली मत कर, प्यार से बात कर, जल्दी अदब और एहतराम से बात कर, लड़ाई झगड़ा मत कर। देख, इसको लोग झगड़ा कहते हैं, इसको लोग झगड़ा कहते हैं। पहले तू गैब की तारीफ कर। तू सारा तेरा फिरका ही झगड़ा है, ओफो, फिरका ही फितना है, ये लड़ने आया है कि बात करने आया है? मेरा नाम सुनते तेरे, अच्छा तू मुफ्ती साहब से, एक मिनट, मुफ्ती साहब से बड़ी अच्छी बात कर रहा था, मेरा नाम सुनते ही पागलपन के दौरे पड़ने लगे तेरे ऊपर। पहले तू कर, तू मुझे जानता नहीं ठीक तरीके से, पहले तू कर गैब की तारीफ, फिर बाद में मैं करूंगा। मैंने बहुत सारी ऑडियो में मैंने गैब की तारीफ की है, पहले तू कर। बजरिए आलात के जो छुपी हुई चीज मालूम की जाए वो इल्म गैब नहीं, वो इल्म गैब नहीं। मसलन किसी आला के जरिए से औरत के पेट का बच्चा मालूम करते हैं, या टेलीफोन या रेडियो से दूर की आवाज सुन लेते हैं, उसको इल्म गैब नहीं कहेंगे, क्योंकि गैब की तारीफ में अर्ज कर दिया गया कि जो आवाज से मालूम सके, और टेलीफोन या रेडियो में से जो आवाज निकली वो आवाज से मालूम होने के काबिल है। आला से जो पेट के बच्चा का हाल मालूम हुआ, ये भी गैब का इल्म न हुआ, जबकि आला ने उसको जाहिर कर दिया। तो अब गैब कहाँ रहा? तो मैं और तुम जो गुफ्तगू, मेरी तेरी गुफ्तगू हो रही है, जाल हक सफर नंबर 41 है, ये तारीफ कर रहा है, तेरी मेरी आवाज जो तू सुन रहा है मैं सुन रहा हूँ, ये गैब नहीं है, न माकानो मायकुन है। इतना बड़ा जाहिल है, कौन बात कर रहा है, बोल रहा है माकानो मायकुन इल्म गैब है। सामीन हो सकता है, चुप तो जाता है। ये बात, ये किसने सिखाया तुझे? बात करने का तरीका किसने सिखाया? पहले तो ये लड़ना आया कि बात करना आया? पहले तो ये बता, तू लड़ना आया है या बात करना आया? पहले तो ये बता। देख, ठीक है, मैं तारीफ करता हूँ। इल्मे गैब की तारीफ ये है कि गैब उन बातों के जानने को कहते हैं जिनको बंदे आदि तौर पर, आदत के हिसाब से, आदि तौर पर, मैं बाद में बताऊंगा कहाँ से पढ़ता, टेंशन मत ले। तू अभी नूर हसन को जानता नहीं, बाद में बताऊंगा ना, पहले पूरी बात सुन, पहले पूरी बात सुन। नहीं बताऊंगा, पहले पूरी बात सुन, पहले पूरी बात सुन। मुसलमानों देख रहे हैं, अच्छा, अरे देख रहे हैं चल किताब का नाम सुन, कदे कहीं के किताब का नाम सुन, किताब का नाम सुन। किताब का नाम है तफसीर कबीर, जिल्द 1 है, सफा नंबर 174 है। फिर वही बात, पहले जो मैंने कहा उसको सुन, मैंने क्या बोला तुझे? वो अरबी में उर्दू में? किताब का नाम सुना पहले? अरबी में उर्दू में बोल बोले? पहले किताब का नाम सुना तूने कि नहीं सुना, ये बता। हाँ, तफसीर कबीर अरबी में उर्दू में है। फिर वही बात, मैंने कहा कि तूने किताब का नाम सुना कि नहीं सुना, ये बता पहले। तेरे पास किताब है, अरबी या उर्दू बोल। फिर वही बात, तुम्हारा जिक्र है, मैंने जो तुझसे कहा है, अरे अरबी है, एक बोल, दो कुछ मत बोल, अरबी में है उर्दू में बोल, जल्दी बोल। ये अरबी की इबारत है, ये अरबी की, अबे सुनना, ये अरबी की इबारत है। देख रहे हैं मुसलमानों कितना बदतमीज बोल रहा है। खैर ये तो मुसलमान फैसला करेंगे कि कौन बेगैरत है, मुसलमान फैसला करेंगे कौन बेगैरत है, मुसलमान फैसला करेंगे। अरबी बात पर जल्दी भाग रहा है, तू भागता क्यों है? तूने मुझे पढ़ने का मैंने बोल दिया तारीख। अच्छा, तूने अरबी की इबारत पढ़ के बताई मुझे? मैं तो पढ़ दूंगा इंशाल्लाह, मगर एक मिनट, मैं तो पढ़ दूंगा, मगर तूने मुझे अरबी की इबारत पढ़ के दिखाई अपने, तूने किस किताब से जो है, एक मिनट, तूने जो तारीफ की, मैं हराम दे पिला साले सुअर कहीं के, तूने जो तारीफ की है, एक मिनट, तूने जो तारीफ की है वो कौन सी किताब से की, जरा ये बता पहले। अब मैं तेरे एक तो उर्दू में मैंने तारीफ, मेरी बात का जवाब दे, इधर उधर मत भाग। तूने जो तारीफ की है, ए हराम के पिल्ले भाग, तूने जो तारीफ की है वो कौन सी किताब से की है बता। फिर वही बात, तूने जो तारीफ की है इल्मे गैब की वो कौन सी किताब से की है, पहले ये इसका जवाब दे। तेरे घर की कोई किताब नहीं है, तेरे मुल्लाओं ने कोई तारीफ नहीं की है, तूने जालहा से क्यों पढ़ी ये बता पहले।
तूने जाला से क्यों पढ़ी? तेरे मुल्लाओं ने कोई किताब नहीं लिखी। अच्छा ये जाल हक तो हक के मान रहा है किताब हमारी। जाल हक को तू मानता है ना? हक जाल हक को तू हक मानता है ना? तेरे लिए है ना? जाल, अरे मेरे लिए देख रहे हैं मुसलमानों, तेरे लिए जो मोतबर वही दिया ना मैंने, जाल, अरे वो तेरे लिए मोतबर वही मैंने दिया ना। शैतान कहीं के, मैंने तुझे वहां से दलील दी है, मैंने तुझे अपने घर से कहीं से दलील दी, मैंने तुझे वहां से दलील दी है कि तू तेरा थान भी हरामी भी उसके कब्र से आ जाएगा ना, और वो इसका रद्द करे, इनकार करे, तो वो भी नहीं कर सकता। समझा? नज्द की नाजायज वाला। हजरत कॉल काटो इसका, कॉल काटो इसका, हजरत कॉल काटो इसका, हराम के पिल्ले का। ये सारा लड़ना है, बात थोड़ी करना है। कॉल काटो इसका हजरत, हजरत कॉल काटो इसका हजरत, तौर पर अपनी ही किताब पेश करते हैं। कॉल काट दो कि मुद्दाई अपने घर से अगर दलील पेश करे, हाँ कॉल काटो, ये बात थोड़ी कर रहा है, लड़ रहा है। इसको लोग गुफ्तगू थोड़ी कहते हैं, इसको लड़ाई झगड़ा कहते हैं लोग। मैं मुद्दाई हूँ तो मैं अपने दलील को तेरे घर से पेश किया हूँ। तुझे अहले सुन्नत जमात का मुसन्निफ लिख रहा है कि मुद्दाई मध्य मुकाबिल की घर से उसके किताब से दलील दे, न कि अपने घर से दलील दे। अगर मैं मुद्दाई मैं अपने घर से दलील दूंगा तो मैं बेवकूफ हूँगा। तो बड़ा बेवकूफ है तू कह रहा है कि मुझे मेरे घर से दलील देने के लिए। अच्छा माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात कह दी, बड़ी अच्छी बात कह दी, बड़ी अच्छी बात कह दी, बड़ी अच्छी बात कह दी। उसूल तो ये है तो अब जो मुद्दा आने के घर से दलील पेश करे, हो गया है दलील पेश करे। अब कह रहा है मैं अपने घर से पेश करूँ, अब दलील लेती, अब दलील लेकिन तुम सुन तफसीर कबीर के अरबी बात पर सुने चल, तफसीर कबीर के अरबी बात पर दूंगा सर। हे बाबू अब तो टेंशन मत ले, अब मैं तेरे घर का एक मिनट अरबी बात पर तूने कहा तफसीर कबीर में तारीख के इल्म गैब की अरबी सुन मिशकात अरबी बात कर रहा हूँ मैं, बाबुल मसाजिद सफा मैं सुनूंगा अरबी बात सुन। अल मसाबी किताबुस सलात बाबुल मसाजिद व मवाज़ी इधर अबे हराम के पिल्ले, मेरी बात सुनो इधर बाबू सुनो हदीस मेरी बात को नहीं सुन लिया, मैं क्या बात करूं शैतान के पिल्ले से। मैंने अपने रब्बे अज़्ज़ को बेहतरीन सूरत में देखा तो उसके मुताबिक ऊपर वाली जमात किस चीज में बहस कर रही थी, समझे? किस चीज में बहस कर रही है तो मैंने तो ही उसको जाकर करने वाला है। फिर खुदा बंदे आलम ने अपने कुदरत की हथेली को मेरे दोनों शानों के दरमियान रख दिया तो मैंने उसकी ठंडक को अपनी दोनों छातियों के दरमियान में पाया, और जो कुछ आसमानों जमीन में है सबको मैंने जान लिया। ये मिशकात शरीफ की हदीस है। मिशकात अल मसाबी किताबुस सलात बाबुल मसाजिद व मवाज़िउस सलात अल हदीस, एक किताब सफा नंबर 725 जिल्द 1 सफा नंबर 152। ये मिशकात शरीफ है। मिशकात शरीफ पढ़ा है, जानता मिशकात शरीफ? हाँ सुन ये इल्म की तारीफ है। अबे ये मैं तो तुमको इल्म गैब के बारे में बताया कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब की तारीफ पूछ रहा हूँ। इल्म गैब की तारीफ की बात चल रही है, मुझे कहा मैं तारीफ कर दिया, तू तारीफ कर। वो कह रहा था नूरतन तफसीर कबीर से तारीफ करेगा तो खामोश रहा। तारीफ ये गैब की बात कर रहा है, बोल रहा है इल्म गैब की तारीफ है। ये इल्म गैब की तारीफ करना बोलो उसको, ये नहीं सुनेगा। अरे ये नहीं सुनेगा हजरत। और अगर तू हलाली है, अगर 100 आदमियों का मिक्सचर नहीं है तो अब मेरी पूरी तारीफ कर, ठीक है? और तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया है, अगर सैकड़ों लोगों का मिक्सचर तू नहीं है तो अल्लामा इमाम राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह के इस हवाले को, उनकी इस तफसीर को तू गलत साबित करके दिखा। हराम के पिल्ले लिखते हैं अपनी किताब में तफसीर कबीर जिल्द 1 सफा नंबर 174 में, इल्म गैब उन बातों के जानने को कहते हैं जिनको बंदे आदि तौर पर अपनी अकल और अपने हवा से सब। हराम के पिल्ले चल हजरत इसका कॉल काटो यार, मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मेरी क्यों बात को नहीं सुनता मेरा दिमाग? मैं ऐसे लोगों से हजरत बातें करता हूँ, कॉल कट करो ना इसका। मैं जब पढ़ रहा हूँ क्यों नहीं पढ़ने देता ये? हजरत ये बताइए क्या ये तरीका है? इसी तरह से देवबंद में पढ़ाए जाते हैं आलिम, इसी तरह के देवबंद में आलिम बनते हैं। मैंने इसीलिए मना किया था हजरत आपको कि ये आपका फील्ड नहीं है, इन हरामियों को मैं ही समझूंगा इंशाअल्लाह। आपका बड़ा मकाम है, बड़ा ओहदा है। अबे हराम के पिल्ले, दुनिया में किसी देवबंदी औरत ने अभी तक ऐसा बच्चा नहीं जना है, अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं किया है जो नूर हसन को फांस से। समझा? हराम की औलाद। अच्छा तो तू कर इल्म की तारीफ क्या, इल्म गैब की तारीफ क्या? फिर बता, देखने वाले मैंने कर दिया। अच्छा कर दिया। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।
تو یہ بتا، ایک منٹ حضرت، ایک منٹ بس، یہ پھنس گیا آپ نے ہی باتوں میں پھنس گیا یہ حضرت. اچھا، آلے سے اگر پیٹ کا بچہ دیکھ لیا جائے، جان لیا جائے تو یہ علم غیب نہیں ہے. اگر بغیر آلے کے دیکھا جائے تو یہ غیب ہے نا. ارے پھر اب حضرت دیکھ رہے ہو چاروں طرف کو بھاگ رہا ہے، چاروں طرف کو بھاگ رہا ہے. کیا کیا جائے اس کا حضرت؟ جہاں جاؤ وہیں سالہ بھاگ جاتا ہے، جہاں جاؤ وہیں بھاگ جاتا ہے. ایسے بڑی بات ہوتی ہے حضرت. ہنسی آ رہی ہے مجھے حضرت اس سے جہالت سے سالے. کہا کہ تفسیر کبیر کی عبارت میں علم کی تعریف ہے، عبارت کو جلدی یار کتنی بار پڑھوں حضرت، میں نے پڑھا نا. علم غیب ان بات خاموش رہے، اگر حلالی ہے تو، ورنہ حرامی ہوگا، 100 لوگوں کا مکسچر ہوگا. چپ اب. اس سے کیا بھیک مانگ رہا ہے تو؟ علم غیب ان باتوں کے جاننے کو کہتے ہیں جن کو بندے عادی طور پر اپنی عقل اور اپنے حواس سے نہ معلوم کر سکے. پورے کہا تفسیر کبیر، عربی عبارت پڑھ، عربی عبارت پڑھ جلدی. ٹھیک ہے، عربی عبارت سن، عربی عبارت قول جمہور المفسرین الغیب هو الذي يكون غائبا عن الحادثہ. تفسیر کبیر عن الحادثہ، عن الحادثہ. کتنی بار تم کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہے؟ تو مجھ سے مطلب پوچھ رہا ہے یا عبارت کہتا؟ عبارت کیوں نے کہا میں نے عبارت؟ اگر عبارت غلط ہے تو مجھے بتائیے غلط پڑا ہے. ایک کتا بول، ایک کتا بول. دیکھ رہو حضرت، بدتمیزی کرے گا، اس کے علاوہ کرے گا کچھ نہیں. ایک کتا بول، ایک کتا، دو نہیں. اچھا تیرے، تم بھی تو دو لوگ ہو نا، تو بھی تو دو لوگوں کے ساتھ ہے نا، تو بھی دو کتا نہیں بولنے کا. دیکھو یہ بات نہیں کرے گا اور اس کو لوگ بڑا کتا بولنا دے. ایک منٹ، بڑا کتا بولنا دے. اصغر دیوبندی، اجگر تو سنو تمہارے لڑنا آیا، یہ بات تھوڑی کر رہا ہے. اس کو لوگ جھگڑا، لوگ اس کو جھگڑا کہتے ہیں، گفتگو تھوڑی کہتے ہیں حضرت. بتائیے کیا بات کرنے کا انداز ہے حضرت؟ نہ انداز ہے اس کو، نہ طریقہ. یہ جو ہے نا، دیکھیے اس کے گھر کا میں حوالہ بتاتا ہوں. اس نے انکار کیا نا کہ حضور ما کانا و ما یکون کا علم غیب نہیں جانتے، یا جو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا علم حضور کو نہیں ہے. یہی اس کا کہنے کا مطلب ہے نا. اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے تو کہہ دیا. اس کا بھی حق بنتا تھا. جو ہے نا رد ہو چکا ہے، سمجھے کہ رب کا قرآن و حدیث سے رد کیا گیا. مشکات شریف کا حدیث پیش کی، قرآن شریف پیش کی. اب یہ گستاخ نبی نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب گستاخ نبی یہ ثابت ہو گیا تو قرآن مقدس کے اعتبار سے یہ حرامی ثابت ہوا. بے شک بے شک. اب میں اس کے گھر کا حوالہ دیتا ہوں. اس نے بھی کہا تھا نا کہ مخالف کے گھر سے، مدعی کے گھر سے جو ہے جواب دینا چاہیے. تو اب بس اس کا حوالہ میں دے دیتا ہوں. فضائل اعمال جو جھکڑیا نے لکھا نا، ملا جھکڑیا نے. اب دیکھیے میں کہ اکابر دیوبندیہ جو ہے اصول فتویٰ کی روشنی میں کافر ہے. اب دیکھیے وہ اپنے ہی اعتبار سے اپنے اکابر کو کافر کس طرح کہتے ہیں. میں ایک دو جواب پیش کر رہا ہوں کہ گنگوہی کے مطابق تھانوی مشرک ہے. گنگوہی صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علم غیب ہونے کا متعدد ہے، سعداد حنفی کے نزدیک مشرک و کافر ہے. فتویٰ رشیدیہ ایمان و کفر کے مسائل، یہ سب سے یہ بیان ہوا. لیکن اب یہاں پہ کیا کہتا ہے، لیکن اس کے برعکس تھانوی جی نے حفظ الایمان میں بچوں، پاگلوں اور جانوروں تک کے لیے علم غیب کا اقرار کیا ہے. ملاحظہ ہو تو ایسا علم غیب تو زید و عمر ہو، بلکہ ہر سبھی ہو، مجنون، بلکہ حمی حیوانات و بہائی کے لیے بھی حاصل ہے. جی میں وہاں جمی حیوانات، ہاں یہ ہانے میں دیا ہے. اچھا جی جی جی، جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی یہ حاصل ہے. سمجھے حفظ الایمان کا یہ تو یہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کے جو تھانوی ہے بھائی یہ کافر ہے اس کے اکابر کے نزدیک. بے شک بے شک مشرک ہے، مشرک ہے. کافر اس بات سے یہ کہہ رہے کہ علم غیب کسی کو نہیں ہے، لیکن اس کے تھانوی کہتا ہے کہ علم غیب ہے، بچوں پاگلوں کو علم غیب ہے. اب دیکھیے، اور ان کا باپ بڑا تھانوی اسماعیل دہلوی بھی کہتا ہے کہ
दिल के छुपे राजों को जान लेना ये सिर्फ अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की कुदरत है। और किसी को पुकारना और ये अकीदा रखना कि उसने मेरी आवाज को सुन लिया, तो ये भी गैब है। और ये इस तरह का अकीदा रखना किसी गैरुल्लाह के लिए, ये सब शिर्क है। छुपी हुई चीज का इल्म किसी गैर के लिए मानना, यानी इल्म गैब का किसी के लिए अकीदा रखना, ये शिर्क है अगर किसी गैरुल्लाह के लिए माना। अब गैरुल्लाह तो नबी भी है, बिल्कुल इन्होंने सबका इनकार किया है। गैरुल्लाह के लिए इल्म गैब का अकीदा रखना ये शिर्क है। तो ये दो मुल्लाओं के फतवे से थानवी काफिर है, क्योंकि इसने हमारे नबी के इल्म गैब का इकरार किया है, उसके साथ साथ हमारे नबी के इल्म गैब की तौहीन की है, क्योंकि इसने शैतान ने जानवरों से तशबीह दी, इसीलिए ये अपनी जबान से अपने आप हरामी साबित हुआ अशरफ दबाने से, क्योंकि बार बार कुरान पाक की आयत नाजिल नहीं होगी इन लोगों के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं शैतानों के मुंह से, इन्हीं की जबान से, इन्हीं के कलम की नोक से अपने आप ही जो है ये साबित कर चुके हैं, कर गए हैं कि ये हरामी था। हरामी था है ये लोग किसी बात। अच्छा हजरत, मैं इसके घर का वो हवाला बता दूं जिस पर मेरी बहस हो रही थी, और माँ काना व माँ यकून में ये भी शामिल है जो हम बात कर रहे हैं, है या नहीं हजरत? बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। तो आप सुनिए इसके घर का हवाला। किताब का नाम है फज़ाइल अमाल, लिखने वाले का नाम है मौलवी झकड़िया। मैं तो झकड़िया कहता हूँ कमीने को, शैतान को। अभी आपके एक ग्रुप में शामिल किया हूँ जिसमें वो है बदबख्त। अच्छा सर, मैं उस ग्रुप में मैं टाइम ही नहीं दे पाता हूँ। शामिल किए बस। हाँ इंशाल्लाह मैं रहूंगा, आपकी गुफ्तगू आपसे कुछ सीखूंगा। तो एक आशिक रसूल है, ये बदबख्त से गुफ्तगू होना तय हुआ था 10 बजे रात को। ये देखिए कम वक्त जो है ये हाजिर नहीं होगा, ये क्या कहता है, ये बात भी करेगा आपने। अच्छा, इसका अंदाज देख रहे थे क्या कि क्या यही अंदाज है बात करने का, इसी तरीके से बात होती है? सुबह भी इसने यही कहा, मुझे बड़ा गुस्सा आने लगा हजरत। इसकी आदत है ये। देखिए पहली बात ये है कि ये फोन के जो उलमा किराम से गुफ्तगू करना चाहता है, अब जो उलमा किराम गाली गुलोज नहीं करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करेंगे। मेरी आदत है बड़े अच्छे अंदाज से बात करने की। मैं सामने वाले की बात को सुनता हूँ और अपनी बात को कहना पसंद करता हूँ। अब ये जो पढ़ रहा है, ये फतवा रज़िया का जो इबारत पढ़ रहा था, वो तो उससे भी आला हज़रत ने तफसील बयान किया, उसको अगर पढ़ ले वो ज़हन नशीं से, तो उसमें ये बात वाज़ेह हो जाएगा कि किसके लिए गैब का। जी बस खैर थोड़ी इन लोगों को देखिए, सुधरने वाले नहीं है ये। अच्छा, इनके घर से जो मैं हवाला दे रहा था हजरत सुनिए, और इसके बाप, मगर वो कहता तो बड़ा मजा आता। खैर अब मैं खुद ही बता दूं ताकि अवाम अहले सुन्नत के सामने ये बात पहुंच जाए। इसके अकीदे के मुताबिक वो काफिर है जो भी इस तरह का अकीदा रखता है। खैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को ज़ियारत कराई, यानी जो वहां के अमीर थे, अमीर मक्का जो थे वहां के, तो उनको जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ियारत कराई, हुजूर ने अपना दीदार कराया। और ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इरशाद फरमाया कि उनको, यानी जामी, अब्दुल्ला जामी जो थे, जी 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 अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, कि उनको मदीना ना आने दें। अमीर मक्का ने एक कलाम लिखते हैं, वो कलाम लिखते हैं जो फारसी जबान में एक कलाम है, तनम फरसूद जापारा जहिजरा या रसूल अल्लाह, जिलम पजमुर्द आवारा जइसिया या रसूल अल्लाह। ये कलाम जो है वो ये लिखते रकम करते हैं, समझे जी। हाँ, वो रकम करने के बाद दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि ये कलाम तो मैं लिख लिया हूँ, लेकिन ये कलाम अल्लाह के नबी के इश्क में लिखा हूँ, तो जाकर के अल्लाह के नबी के बारगाह में मैं सुनाऊंगा। जी, मैं जब भी मैं कोई प्रोग्राम शुरू करता हूँ, निकाबत करता हूँ, शुरू करता हूँ, तकरीर शुरू करता हूँ, तो सबसे पहले मैं ये कलाम से शुरू करता हूँ, समझे। बहुत मोतबर कलाम है जिसके बारे में अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी के आशिकों ने फरमाया कि जो भी ये कलाम को जुमेरात की शब, जुमेरात की रात दुरूद शरीफ पढ़ करके पढ़ेंगे अपने घर में, तो अल्लाह के नबी उनके ख्वाब में तशरीफ ला चुके हैं, अल्लाह भी है। तो हजरत अब्दुल रहमान जामी ये कलाम लिखते हैं और अल्लाह के नबी की याद में जो है वो मदीना मुनव्वरा तरफ रुख करते हैं। तो उनको उस वक्त के जो अमीर थे, बादशाह थे, तो उन्होंने गिरफ्तार कर लेता। अल्लाह के नबी उनके ख्वाब में तशरीफ लाते, कहते हैं कि अब्दुल रहमान जामी आ रहे हैं, उसको गिरफ्तार कर, उसको जो है वापस कर दो, अपने घर भेज दो, समझे। तो वो वापस कर देते हैं। तो वो जो है भेड़ियों के रेवड़ में छू करके जो है फिर मदीना शरीफ की तरफ रुख करते हैं, रुख सफर बांधते हैं।
तो होता ये है कि फिर से अल्लाह के नबी उसके ख्वाब में तशरीफ लाते, कहते हैं कि तुमने उसे मना नहीं किया, वापस नहीं किया, वो फिर आ रहा है, तो वो जाते हैं उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, समझे, अब्दुर्रहमान जामी को। गिरफ्तार करने के बाद अल्लाह के नबी फिर ख्वाब में कहा, तुमने मेरे गुलाम को गिरफ्तार किया, फौरन उसको रिहा करो, वो मेरा गुलाम है, मेरा आशिक है, उसको रिहा करो, वो एक कलाम पढ़ना चाहता है, अगर वो पढ़ देगा तो मुझे अपने कब्र अनवर से हाथ बाहर निकालना पड़ेगा उसे मुबारकबादी देने के लिए जी, समझे। जिससे तो वो जो है हाँ अब्दुर्रहमान जानी जो है तो वो अल्लाह के नबी के बारगाह में फिर उनको वापस कर दिया जाता है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि उनको उसे कहो कि जाकर तो अपने घर में, इन्होंने इस तरह लिखा है कि कब्र से जो है बाहर हाथ निकलेगा जिससे जो है फितने का अंदेशा है। हाँ, अच्छा, इन्होंने फितने का अल्लाह के नबी हाँ फितने का अंदेशा फिर कब्र से बाहर निकालने, इसमें भी एक नसीहत थी जी, मुबारक बहुत सारे उसमें ये होंगे, तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि अगर आ जाएगा वो, अगर पढ़ देगा तो मुझे कब्र अनवर से बाहर, वरना अब्दुर्रहमान जामी आज से 850 साल पहले इतने बड़े आशिक रसूल है कि उन्होंने फारसी जबान में बहुत सारी किताबें लिखी, ऐसी ऐसी किताब के फारसी जबान में लिखे थे कि उलमा पढ़ नहीं पाते थे उस वक्त के, समझे। अच्छा, इतनी हार्ड फारसी जबान थी इनकी। तो ये अब्दुर्रहमान जामी बहुत बड़े आशिक रसूल गुजरे, तो अल्लाह के नबी के बारगाह में ये हमेशा जाते थे, जब भी जाते थे तो 3 से 4 दिन ये रुकते थे वहाँ। जब वापसी का दिन होता था, इरादा होता था, तो अल्लाह के नबी के बारगाह में जाते थे और फारसी में ये कहते थे कि या सय्यदी आकाई मौलाई बसफर मी रवम चे फरमाई, यानी ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे दाता, मैं सफर करना चाहता हूँ, इजाजत अता फरमाइए। तो अल्लाह के नबी के रोज़े अनवर से ये आवाज आती, बसफर रफ्तन मुबारकबाद बसलामत रवी वबाज आई, जाओ जाओ सलामती के साथ जाओ, और वबाज आई फिर आना, समझे, फिर आना। ये हमेशा सिलसिला चलता रहा। एक वक्त अब्दुर्रहमान जानी यही कलाम अल्लाह के नबी के रोज़ के करीब पढ़ रहे थे, या सय्यदी आकाई मौलाई बसफर मी रवम चे फरमाई, मज़ारे रसूल से ये आवाज आई, बसफर रफ्तंद मुबारकबाद बसलामत रवी बसलामत रवी बसलामत रवी। अब अल्लाह के नबी जो है आज ये नहीं कहे कि ऐ अब्दुर्रहमान जामी फिर आना, तो वो रोने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं, समझे, इसके नबी में। तो गुलामों ने होश में लाया, कहा कि हुजूर आप बेहोश क्यों हो गए, आप रो क्यों रहे तड़प तड़प करके। कहा कि अल्लाह के नबी के शहर से ऐसा लगता है कि मुझसे कोई तौहीन हो गई। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि जामी फिर आना। तो गुलामों ने तसल्ली दी, कहा कि भी आते हैं तो अल्लाह के नबी के रोज़े अनवर को देखते हैं, मज़ार रसूल को देखते हैं, अगर मर जाएंगे हो सकता है ये आपकी आखिरी मुलाकात हो, आप मर जाएंगे तो कब्र में चेहरे रसूल को देखेंगे, समझे। बहुत बड़ी ये सादत की बात है। तो ये तसल्ली देकर के वो चले जाते, उनकी मुलाकात आखिरी मुलाकात रहती। बहुत बड़े आशिक रसूल गुजरे अब्दुर्रहमान जामी। तो बहुत सारी बातें इससे साबित होती है, उलमा किराम के अक़वाल से, कुरान और हदीस की रोशनी से, बुजुर्गान दीन के फिर इनकी किताबों से भी साबित होती है। लेकिन ये लोग जो है, जो दीन जिससे उठा ली जाए तो वो इसको कुछ समझ ही में नहीं आता ये लोगों को, समझे। ये लोगों को खाली गुमराही का फितना देना कि अबू जहल का काम करना, तबलीगो अशार जो करते हैं, अब ये कहते हैं कि नबी का काम कर रहे हैं, वरना तो ये कुफ्र की दावत देते हैं। असली में ये जो मुसलमान होते हैं उसे भी काफिर की दावत देते कि आओ कुफ्र में शामिल हो जाओ, तुम लोग भी काफिर हो जो नबी के गुस्ताखी करते। ये लोगों की असलियत यही है। अब ये चाहते हैं कि फोन पे गुफ्तगू करिए, इससे मैसेज पे बात हो रही है, दलाइल पेश किए जा रहे हैं, तमाम हवालाजात पेश किए जा रहे हैं, लेकिन ये चाह रहा है कि फोन पे बात करे, कि फोन पे अपना गुफ्तगू बढ़ाएगा खाली, और हरामियों को माही लगा सुनेगा नहीं। पूरी दुनिया के देवबंदियों में दहशत फैल गई है हजरत, पूरी दुनिया में देवबंदी बात करने के लिए राजी नहीं। हाँ सुना है, मुफ्ती कलीम रिजवी का नाम सुना। हाँ, वो भी बहुत जोरदार इल्मों को लथाड़ते हैं। हाँ, शुरू में मुझसे बात करने को मना किया था, तो मैंने अपनी बात वहां तक पहुंचाई थी कि हजरत ऐसे ऐसे बात है, क्या करूं, मैं बात करूं या ना करूं। और बहुत सारी इन्होंने मुझे कई सारी चीजें मतलब बातें कही, तो मैंने उनको बताया कि हजरत ऐसे ऐसे बोल रहे हैं ये शैतान, ये देव का मंदिर, तो कहीं ऐसा ना हो, मैं तो अच्छा समझ के कर रहा हूँ और शायद मैं अच्छा ना कर रहा हूँ हकीकत में। तो बोले नहीं, आप अपना काम किए चले जाओ और ये परवाह मत करो कि कौन तुम्हें क्या बोल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उल्मा जो अपने थे, जिनको मैं भी जानता था, और मतलब सैयद इरशाद अली साहब थे बॉम्बे के, सैयद आबिद अली साहब थे बॉम्बे के, उन सब ने उलमाओं के पास ये खबर भेजी। उन्होंने भी मुझे कहा, उन्होंने भी कहा कि आप टेंशन मत लो, टेंशन फ्री रहो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बुजुर्गों की दुआएं भी हैं जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ, वरना मेरे बस की बात नहीं है, मैं एक सादा सा आम आदमी ठहरा। माशाअल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छे इसमें लगे रही, इंशाअल्लाह ताला जरूर कामयाबी मिलेगी। और जहाँ मेरे इल्म की कोई कमी हो हुजूर, वहाँ आप मेरी रहनुमाई फरमाते रहें। इंशाअल्लाह जरूर। मेरा तरीका हजरत अलग है, थोड़ा हटके है। जी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जमात को उल्मा भी रद्द करते हैं और दुआओं से नवाजते हैं, कहते हैं हजरत जो आपका अंदाज है वो बड़ा निराला
جی جی بالکل سر. میں سامنے والے سے پکا کرا لیتا ہوں, اکھیڑ پچھاڑ کر کے اس سے عقیدہ پختہ کراتا ہوں کہ سچ میں بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے, نشے میں بول رہا ہے کہ ہوش میں بول رہا ہے. جب وہ بگلے گا نا اس کے بعد وہ اس بات کی تو گواہی خود گواہی دے رہا ہے کہ قرآن میں ہر ایک چیز کا علم ہے. تو میرے نبی کو ہوگا نا, جب حضور کو یہ قرآن نازل ہوا تو کیا قرآن میں حضور کو علم نہیں ہوا اس چیز کا؟ جی, اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. بالکل, یہ اس کی بات اسی ثابت ہو چکا ہے. کچھ وقت پہلے مسائل کے تعلق سے میں بھی ایک گروپ یوٹیوب پہ ایک چینل بنایا تھا, حامد رضا آفیشیل بول کر کے. جی, اس پہ تو حضور یہ پورا جو ہے میرے پاس ریکارڈ ہوا ہے, تو میں بھی ریکارڈ کر, اگر آپ کی اجازت ہو. 1 گھنٹہ 13 منٹ کا یہ ریکارڈ ہے. جی 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 ہاں, 1 گھنٹہ 13 منٹ ہو گئے. تو حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو یوٹیوب پہ ڈال دوں. جی 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 ضرور, اجازت ہے. ٹھیک ہے, اور لوگوں کو بھی میں ڈلوا دوں گا انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. اور یہ میرے بھی ایک چینل ہے حامد رضا آفیشیل بول کر کے, اچھا اچھا یوٹیوب پر. جی ہاں, وہ بھی میں آپ کو اس کا لنک بھیجوں گا. اس میں مسائل شریعہ اور کچھ اہم جانکاری اس میں بھیجے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈالے جاتے ہیں. کچھ وقت ہوا ہے تو اس میں کیا ہوں. اور جتنے میرے بھائی بھی بس اس کو سن رہے ہوں وہ بھی حضرت کے چینل کو سبسکرائب کر لیں. نام حضرت دوبارہ سے بتا دیں. حامد رضا آفیشیل. حامد رضا آفیشیل. جی جی ماشاء اللہ. آپ اپنے چینل پہ ٹیگ کر لیجیے گا اسے, بقیہ جو ہے وہی کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت سارے بھائی میں آپ کو لنک بھیج دوں گا اسے. ٹھیک ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر فی الدارین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.